Winters. Undoubtedly the most laziest time of the year, when due to the cold weather you just keep on lying on the bed doing nothing, wondering how much boring and pointless your life is. But the good thing is, you have a weekend coming up, and just to add a little thrill to your life, what do? You just did right. You pack your bags, get your friends, and head straight towards the sacred land of gods, among the mountains, beyond the clouds, to the Dev Bhumi as we all know it. I'm a total sucker for train journeys, so that's why our journey started at Ambala Kent railway station. And as there is no direct train to Nana Devi, our first destination was to reach Anandpur Sahib, as it is the closest railway station to our destination. While we are at it, let me tell you that this was a one-day trip in which we restricted the budget to the bare minimum just to see how much we can save. In this series, I'll share with you my entire expenditure so it becomes easy for you to make your trips budget friendly. So beginning the money count, due to COVID, we had to book the train ticket in advance using the IRCTC mobile app, which cost nearly 250 rupees for the round trip, which is 120 each side. You know how these train journeys are nostalgic and peaceful. That's exactly how ours was. Just when I thought everything was going fine and awesome on the trip, something completely unexpected happened, which could only happen in Indian Railways. See for yourself. चले फिर ट्रैक करते करते ट्रैक कर इसमें क्या ट्रैक ओ हेलो वो ब्लॉगर साहब आराम से गिर के मुंह खुड़वा लो कैमरा भी जाए हाथ आराम से ट्रेन ही चल दी चलते हैं ना? ट्रेन की आवाज आ गई गाइस हम चल पड़े हैं स्टेशन कसम से क्या यार भाई ऐसे ना क्या यार अबे तो रुकी नहीं रही. ऐसे अनंतपुर साहब स्टेशन तो काफ़ी छोटा सा ही है. तभी अभी यहीं पे ट्रेन खड़ी हुई थी. यहाँ पे ट्रेन इतनी लंबी थी कि वो पूरी आई नहीं. हमारा कोच एकदम उस साइड पे था, मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म ख़त्म हो रहा है उसके पार. तो हमें लगा आउटर पे खड़ी है, वापसी आएगी. हमें लगा ट्रेन खड़ी है आउटर पे, आगे जाके रुकेगी. तो मैं तो वैसे ही उतर गया. मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं. तो मुझे क्या बता देगी वो ट्रेन यहीं रुकी हुई है. वो लोग वेट कर रहे थे कि स्टेशन पे रुकेगी, हम उतरेंगे. मैं उतर के पैदल आ गया और ट्रेन निकल गई नंगल डैम स्टेशन. देखते हैं चलो क्या होता है. अभी तुम यहाँ खड़ा हूँ मैं अनंतपुर साहब स्टेशन में. क्या है आनंदपुर साहब. एक सेकेंड. अंकल, यहाँ से अनंतपुर साहब गुरुद्वारा कितनी दूर है? वो सामने गुरुद्वारा सामने ही है. और जैसे नैना देवी जाना तो वहाँ के लिए बस के दर्शन आगे बस अड्डा ना स्टेशन है, वहाँ पर बस मिल जाती है. बस कितनी दूर है यहाँ से? ये रोड जा रहा है आगे गुरुद्वारे के नजदीक है. ये रोड जो है ना आधा किलोमीटर है. सामने बिजली के घर दिखे ना, थोड़े आगे जाके बस अड्डा ही है. ठीक है, कारा मिलती है वहाँ पर. ठीक है. बस भी मिलती है. बस से कार्य चल रही है ना? नैना देवी खुला है ना, बंद तो नहीं है ना? हाँ चलो ठीक है. देख, थैंक यू. यहाँ से 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा है, प्लस उसके सामने ही वहाँ पे बस स्टैंड है. बोल रहे हैं कि यहाँ से बसेस और कार्स दोनों चलती हैं. देखते हैं.
It was a half a kilometer walk from railway station to Anandpur Sahib bus stand. Meanwhile, I got a call from my brother that they'll join me directly at Naina Devi, as there are no buses or trains back to Anandpur Sahib. So be careful to hop out of the train at the right time, else you'll miss the station like my brother did. हर 20 मिनट में नैना देवी की बस आनंदपुर साहब बस स्टैंड से मिल जाती है। मैं तो वेट करूँगा और क्या, I don't have any option. So I waited around 10 minutes for the bus and then I took the first one that I saw. In order to reach the Naina Devi temple, the roadways bus will drop you to a village which is 15 to 20 minutes drive from the bus stand, and then there will be a local Himachali bus waiting for you which will take you to the temple. ये मिल जाएगी भैया बस? ठीक, थैंक यू भैया। Ticket for the buses cost around 10 and 40 rupees for the roadways and the local bus respectively. So the current money count stands at 170 rupees per person. If you haven't travelled in a Himachali local bus, then I highly suggest you to travel in one, because the desi vibes you get in these buses are hard to find anywhere else. Along with the serene views, you get to enjoy the Himachali folk music as well. The bus took around 45 minutes to reach the temple, and after getting there, I thought of talking to the local people there to get to know about the impact of COVID on the place and know about the rich history of Naina Devi as well. So I've reached Naina Devi temple. यहाँ पे अभी जस्ट बस अभी रुकी है 2 मिनट पहले। यहाँ पे सामने ही एक दुकान है, यहाँ पे भैया थे, मैं इनसे बात कर रहा था। सो मैंने इनसे कुछ पूछना था। हाय भैया, आप नाम क्या आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के लोकल है, नैना देवी के। नैना देवी के। तो ये आपकी दुकान है, यहाँ पे मैं आया था 2 मिनट, सामने ही है बिल्कुल गेट के साथ। तो आप कितने साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मेरे को 16-17 साल हो गए। अच्छा, ओके। सो कोरोना करके यहाँ नैना देवी पे काफ़ी भीड़ वगैरह कम हो गई होगी? बहुत ही, यानी कि जीरो में था, बिल्कुल हो गया था यहाँ पे जितना भी टूरिस्ट आता था। लेकिन अभी 2 महीने से यानी थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़ी पब्लिक आने लगी है। ओके, तो मतलब कितना से कितनी कम, पहले अंदाजन कितने लोग आ जाते थे एक दिन में? पहले तो पर डे में ऐसा होता था कि यानी कि 4-5 हज़ार तो आ जाता था, बट जैसे कोई छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे होता था, तो 10,000 15,000 ऐसे श्रद्धालु यहाँ पे आते थे। अच्छा, तो अब क्या हाल हो गया कोरोना की वजह से? हाल है, अब तो पूछो मत। तो अंदाजन कितने लोग आते हैं एक दिन में? आजकल तो यही है 500-700 500-700, इससे ऊपर नहीं। तो 10 गुना कम हो गए हैं। 10 गुना कम है। और जैसे संडे है तो संडे में थोड़ा बढ़ रही है पब्लिक। अच्छा, मतलब संडे में एक दिक्कत और हो रही है कि हमारे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, तो उन्होंने क्या किया है कि यानी कि संडे को हमारी शॉप्स को क्लोज करने के लिए बोला हुआ उन्होंने। अच्छा। क्योंकि कोरोना की वजह से भी, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से यानी कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है पब्लिक की। तो फिर उन्होंने बोला हुआ है कि संडे वाले दिन आप बंद रखो, यानी कि तो मतलब संडे को सबसे ज़्यादा काम होता है, उसी दिन मना कर दिया है। बिल्कुल बंद किया हुआ। तो मतलब काफ़ी नुकसान हो रहा है, मंदी का सामना करना पड़ रहा है बहुत। वही, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से वैसे ऊपर कितनी जाने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा, और ऊपर 1 किलोमीटर का रन है यहाँ से। हाँ, यहाँ पहली पौड़ी है, पहली पौड़ी से यानी कि मंदिर तक का 1 किलोमीटर का रन है, और आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, आराम से भी जाएंगे तो। हाँ, तो ऊपर कोरोना की वजह से मंदिर में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ ऐसा रिस्ट्रिक्शन है? वहाँ पे मास्क लगा के जाना पड़ेगा। अच्छा, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का बना के रखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। और मैंने ये भी पूछना था, जैसे आप लोकल हैं, जैसे तो नैना देवी के इतने 15-16 साल से आपकी दुकान है, तो नैना देवी की इसे नैना देवी क्यों कहा जाता है? मतलब इसके पीछे कुछ कहानी? हाँ, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब माता पार्वती का यानी कि वो सती हुए थे, यानी कि जब उनको आग लगी थी, थोड़ा उनके पिताजी का हवन कुंड में उन्होंने छलांग लगाई थी, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ था, उनका शरीर जल गया था। फिर जो भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे माता सती को लेकर के, तो उनके जो आंखें थी वो यहाँ पे नैना देवी में गिरी थी।
और यहाँ पे उसी प्रकार से इसको नैना देवी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे माता के नयन गिरे थे। ओह अच्छा, तो इसी वजह से तो मतलब मैंने ऐसे गूगल वगैरह पे पढ़ा था तो वहाँ की 51 टुकड़े किए थे विष्णु जी के चक्र ने। हाँ, वो किए थे, माता सती के किए थे, तो वो 51 शक्तिपीठ बन गए थे पूरे ब्रह्मांड में। तो ऐसे 51 मंदिर और हैं, मतलब 50 और हैं हाँ जी, नैना देवी के अलावा। इसके अलावा तो हिमाचल में इसके अलावा और कौन? हिमाचल में है ब्रजेश्वरी है, अच्छा, फिर तुम्हारा कांगड़ा माता है, ब्रजेश्वरी माता है, फिर चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है। ओह हाँ जी, तो यहाँ पे भी है, यानी कि 5-6 शक्तिपीठ तो है ही है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। और जो बचे हुए हैं वो अदर स्टेटों में है, अलग अलग राज्यों में। अच्छा हाँ, नैना देवी पर्टिकुलरली काफ़ी फेमस है यहाँ पे, लोग नैना देवी ज़्यादा भी जानते हैं। यहाँ भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर एरिया करके ना, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर एरिया करके यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा जानते हैं, और श्रद्धालु भी ज़्यादा आते हैं। और यहाँ इसके साथ चिंतपूर्णी पड़ता है, ज्वाला जी पड़ता है, वहाँ पे भी काफ़ी फेमस है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू भैया, ये थैंक यू डिटेल्स के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, यहाँ पे भैया की जो दुकान है ये बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्रेंस के पास ही है, मतलब यहाँ पे बसेस वगैरह खड़ी होती हैं, एंड बसेस के यहाँ पे साइड में बिल्कुल यहीं पे दुकान है। भैया ब्रेड पकौड़ा वगैरह ब्रेकफास्ट की चीज़ें बेचते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे आएँ। So before moving ahead, I wanted to request you all to please support local people by buying their stuff without bargaining whenever you visit a remote tourist place like this one, because these are the people who are the worst hit by COVID crisis and are only dependent on tourists like us for their livelihoods. So next time you see a local, you know what to do. थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। ठीक है, हमें मुझे आने में भी 40-45 मिनट लगे हम वहाँ से। नवाब, हमने कहा कि हम धरती पे पैर रखेंगे, प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। वो तो जब प्लेटफॉर्म पे निकला देखे भाई साहब रुक क्यों नहीं रही है, ये यार रुकेगी सबसे थोड़ी। गंदी बात पता है क्या थी? पीछे से बंदा आया, वो कहता कि ये नहीं है, रुकेगी। मैं तो अगले मोमेंट ये था, बैग फेंको, मैं तो खुद मार रहा हूं, इन्होंने पकड़ लिया। साला चलती तो ये नंगलडाम में फिर तुम क्या बस स्टैंड गए थे? हाँ बस और स्टैंड गए, क्या बस स्टैंड से भाई। बस ली हमने। बस स्टैंड पे भी चलो ऐसा स्टार्ट करते हैं फिर। चलो भाई आओ। हाँ फाइनली ट्रैक स्टार्ट है। यस, माता जी की जय। ट्रैक, जय माता दी। भैया ने सारा बता दिया। ओके रिपोर्ट थी। तो भाई हाँ, दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस। या दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस मैन। तो अब फाइनली हम यहाँ से कर चुके हैं अपना माता जी की जर्नी को स्टार्ट। हाँ, अगर आप थोड़ा सा हमारी तरह फिट हो तो आपके लिए आधे घंटे का, अदरवाइज हाँ, तो ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। तो ये ऐसा झूठ बोल ले कि मैंने काफी पैसे दिए, बहुत ज्यादा पैसे दिए। तो अब आपको मेन, अगर मैं थोड़ा इस एक्सपीरियंस हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आ ही रहा हूँ हर साल। तो यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ से एक रास्ता बिल्कुल ही स्ट्रेट जा रहा है, इजी स्लो। एक है बिल्कुल ही खड़ा रास्ता, बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर स्टेप्स के थ्रू जाता है। तो कौन सा प्रेफर करेगा? कौन सा वाला? ये वाला जल्दी किससे पहुंचेंगे? उस स्टेप्स पर से, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रेट है। इससे चलते हैं। So we took the steps instead of the ramp, which is more difficult but will save you 15 to 20 minutes of time. The nearly 550 steps trek is pretty easy and can be completed in 40 to 45 minutes. Just say Jai Mata Di and keep on climbing, and before you know it, you'll be at the top. हाँ, ये ले पकड़। पता है क्या, हमें ना स्ट्रेटेजी हमारी गलत जा रही है। स्टार्टिंग में एनर्जी लगा दी, बाकी चले भाई शुरू हुई है, अभी झूल जा रहे हैं। सामने व्यू दिखा। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, बिजली महादेव चढ़े हो तो तुम तो झूल जाओगे। वहां तो इतनी थकान होती है ना।
We completed the trek in around 25 to 30 minutes, but this is the absolutely worst way to climb there, as this will exhaust you completely like us. Save your energy, be slow and steady, and you will reach without any difficulty. धन्यवाद भैया। जय माता दी। जय माता दी। Located at an altitude of 1177 meter above sea level, Nana Devi is open around the year with maximum crowd in Navratris, when many devotees come here and offer their prayers during the auspicious 9 days. A fair is also held at that time, so it becomes the best time of the year to visit. The view from the temple is absolutely amazing. Have a look. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मंदिर में शूट ही नहीं करने देंगे, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, बट कैन वी डू। अब यहाँ से सीधा उतरना शुरू कर दिया है। देन विल रीच द बस स्टैंड इन हाफ एन आवर। वहाँ से विल टेक द बस, वहाँ से 1 घंटा लगेगा टू अनंतपुर साहिब। देन देयर इज़ अ गुरुद्वारा देयर, विल ट्राई एंड रीच देयर इन टाइम। अगर वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए तो गुरुद्वारा भी घूम लेंगे, अदरवाइज विल गो 4:30 की आनंदपुर साहिब स्टेशन से वी हैव अ ट्रेन बैक एंड दैट इज़ द ओनली ट्रेन टुडे। तो अगर वो मिस होती है देन कल सुबह की 6 बजे की ट्रेन है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर टाइम पे पहुंच गए तो ठीक है। सो हेडिंग बैक नाउ। Remember, there is absolutely no expenditure at the temple, so avoid getting scammed for anything. The ticket for the return bus costs 50 more rupees, taking the total budget count to 220 rupees. So that was all for Nana Devi, but before we go, I really want to mention the Anandpur Sahib Gurdwara, which is at a 5-minute walk from the bus stand and is on the way to the railway station. And you must visit it because you won't find a place as peaceful as that. So while you're at it, add a cherry on top of the cake and do pay a visit to the Gurdwara to calm your soul. Today's day was successful. नैना देवी भी मत्था टेक लिया, आनंदपुर साहिब भी मत्था टेक लिया। आज के लिए बहुत धार्मिक हो गए। 7-8 महीने से कहीं ऐसे घूमने को नहीं मिला था ढंग से। इतने टाइम बाद पहली बार ढंग से घूम पाए हैं। 4:25 की वापसी की ट्रेन है एंड आई थिंक द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव इनफ कि अगर आपका कभी प्लान बने तो आप लोग आ पाएँ। बट आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and plan up to come to Naina Devi once in a while and thank me later. So adding final 120 rupees for the train ticket back to Ambala, our final money count for the trip is just 340 rupees. And that's how, homies, you make a super cool one-day trip within a super low budget. So before I say goodbye, I really want to thank you for making it this far in the video and want you to know you have my heart. And remember, we also have a lot to unfold in Himachal Unfolded, so wait for chapter 2 coming your way real soon.
Now I think I have a train to catch now. So have a nice day and I'll definitely see you in the next one. Tata. चल 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 भाई बहुत आगे चला गया वो चल 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 भाग ले ओए